हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीतिक विज्ञान की। ये चैप्टर जो है हर क्लास के हर बोर्ड के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। इमरजेंसी इज अ प्रोविजन and here chapter is an important topic: emergency causing by the war, external aggression, etc. There is emergency causing by the war, external aggression, etc. Here the provision has been made in the constitution for the dealing with the extraordinary situations that may be a threat to place of security, stability and governance of the country or part and thereof. There is the three types of extraordinary crisis situation that are the investigated, and the first when there is a war or external aggressions has been to the committed or there is threat of the same, or if the internal disturbance of amounting to be armed is rebellions take place. Second, when it become impossible for the government of the state to be carry on the accordance with the constitutions. And third, if their credit of financial stability of the country is threatened, in each case of the president may be issue or proclamations with the varying consequence. In this is a section we will be discuss the emergency causing by the war, etc. The popularly known as the national emergency. Our next topic is a proclamation of the national emergency, article 352. There is the most important is the proclamations. The Constitution of the India has provided for the imposition of the emergency causing by a war and external aggressions or internal rebellion. This is described as a national emergency. These types of emergency can be declared by a president of India if he certifies that a situation is very grave and security of India are apart of threats of the likely to be a threats either by war, external aggressions, or by army to rebellions within a country. The president can be issued such as a proclamations even on the as a ground of threat, wars and aggressions. According to 44 amendment of Constitution, the president can declare such an emergency only if the cabinet recommended in a written to do so. Such as the proclamations of emergency has to be approved by both the House of Parliament. Is a absolute is a majority of the total member of House as well as 2/3 is a majorities of their member present and voting within 1 month. Otherwise, the proclamations are cease of the operate in case the Lok Sabha stand to dissolve at the time of proclamation of emergency or not in a season. It has to be approved by the Rajya Sabha within 1 month and the later one by their Lok Sabha also is within the 1 month of the start of the next sessions. One approval by there is the Parliament. The emergency remain in the force of a period of 6 months from the date of the is the proclamations. In case it is to be extended by the beyond 6 months, another is a period. Resolution has to be passed by the Parliament. In this way, such a emergency continue indefinitely, but it is the situation improved to the emergency can be revoked by another is a proclamation by there is a President of India. The 44th Amendment of the Constitution provide that 10% of the more members of Lok Sabha can be is requests and meeting of the Lok Sabha, and that is a meeting. It can be disapproved or revokes their emergency by a simple majority. In such a case, emergency will be immediately become imperatives. And the national emergency has been declared in our country 3 times so far. And for the first time is emergency was declared on 26 October 1962 after China attacked our border in the northeast. And this national emergency lasted till of 10 January 1969 and the long after the hostility is ceased. And second time it was declared on the 3 December 1971 in the work of the second Indian-Pakistan war and was lifted on 21 March 1977. Well, the second emergency on the base of external aggressions was the
Operation Third National Emergency. It's called Internal Emergency, was imposed of 25th is June 1975. This emergency was declared on the ground of internal disturbance. Internal disturbance here justify in connection with the emergency desire that the fact that the government was already armed with the power provided during their second national emergency of 1971 and which was still is a operation. The one next topic is effect of the national emergency. The declaration of national emergency has a far-reaching effect both on the right of the individual and autonomy of the state in the following manner. The first here, the most significant effect is that the federal form of the constitution change into the unitary. There is the authorities of the center increase and parliament assume their power to make law for the entire country or any part of thereof, even the respect of the subject and mentioned in the state list. And second, the President of India can issue the direction to the state as the manner in which their executive power of the state is to be exercised. And the next year, during this period, the Lok Sabha can be extended its tenure by the period of 1 year at a time, but the same cannot be extended beyond 6 months after the is a proclamations and in case they operate. The tenures of the state assemblies can also be extended in the same manner. The next year, during the emergency, the president is empowered by the modify the provision regarding a distribution of the revenues between the union and the state. And the next year, the fundamental right under Article 90 about which you have already learned are automatically as suspended and the suspension of continue till the end of the emergency. But according to the 44 amendment is a freedoms list for Article 19 can be suspended only case of the proclamations on the ground of war or external aggressions. For the above discussion, it has become quite clear that emergency not only suspend the autonomies of the state but also convert the federal statutes of India into the unitary one, and still is considered is necessary as the equips a union government with the vast powers of the cops up with their abnormal situation. The exigencies of the situation prevailing in the period of 1975 to 77 and necessitated is a content changes in the constitution regarding emergency is a provision, and therefore the 44 amendments meant and was passed on 30th April 1977 to the strength that democratic feature of the Indian Constitution to protect citizens' right even during to the national emergency. दोस्तों हमारा जो यहाँ पर टॉपिक आया है आपातकालीन। देखिए आपातकाल जो होता है वो सिचुएशन होता है जब देश जो होता है कंट्रोल से बाहर चली जाती है, तब ये प्रावधान है कि हम इसमें जो है आपातकालीन घोषणा करके यानी इमरजेंसी की घोषणा करके जो है देश को जो है बचाना होता है। तो युद्ध एवं बाहरी आक्रमण के कारण जो है आपातकाल, ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। जिस दिन से जो है भारत स्वतंत्र हुआ है, हमें देश के सामने मौजूद अनेक समस्याओं का सामना करने के लिए युद्ध स्तर पर जो है हमें संघर्ष करना पड़ा है, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के पास बहुत ही संसाधनों की कमी थी। जितना हमें उन्हें हल करने का प्रयास किया उतने ही वो बढ़ती रही, परंतु एक राष्ट्र के रूप में हमने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। इसके परिणाम स्वरूप भारत उन्नति के मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ता चला गया। अचानक एक झटका तब लगा जब हमारे एक पड़ोसी देश चीन ने 1962 में हमारी उत्तरी सीमाओं पर आक्रमण करके देश की सुरक्षा को चुनौती दी। केंद्र सरकार ने इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए असाधारण व्यक्तियों से अपने को जो है लैस कर लिया, क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। देश की सुरक्षा, एकता और अस्तित्व की रक्षा के लिए भारत के राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार की आपातकालीन स्थिति को निपटने के लिए एक विशेष शक्ति प्रदान की गई। कहते हैं अगर बात देखा जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद जो है 352 की घोषणा, यानी ये शक्ति जो था राष्ट्रपति को दिया गया, जिसके कारण वो जो है राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा किया जा सकता है। क्योंकि जब ऐसी बाहरी आक्रमण हमारे देश पे होता है तो इस कंडीशन में जो है लोगों को सुरक्षा करना सबसे बड़ी दायित्व होती है। तो ये उस समय होता है जहां पर लोगों को जो है सुरक्षा करने के हर संभव कोशिश किया जाता है। कहते भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का प्रावधान है।
ऐसी घोषणा भारत का राष्ट्रपति कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो जाए कि स्थिति बहुत विकट है तथा भारत तथा उसके किसी भी भाग को सुरक्षा खतरे में है। इसमें अगर हम बात देखें तो युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण देश के जो है अंतर सशस्त्र विद्रोह के कारण ध्यान रहे कि राष्ट्रपति यह घोषणा ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से पहले भी कर सकते हैं। यानी कहते हैं इमरजेंसी की पावर राष्ट्रपति को उस समय दी गई है जब जो है युद्ध बाहरी आक्रमण हो और देश में जो लगे कि यहाँ पर जो है सब कुछ सही नहीं है, तो इस परिस्थिति में जो है राष्ट्रपति यहाँ पर इमरजेंसी लागू कर सकता है। यानी 44वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति ऐसी संकटकालीन घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे ही कर सकता है। कहते हैं ये सिफारिश जो होता है मंत्रिमंडल के लिखित जो है दस्तावेज पे ही किया जा सकता है, जैसे कि इंदिरा गांधी ने भी किया था कि इमरजेंसी के लागू रातों रात करवाई गई थी। तो ये बड़ी बात थी जो कि बहुत ज़रूरी भी था। कहते हैं ऐसी जो है संकटकालीन घोषणा की पुष्टि संसद के दोनों सदनों के द्वारा 1 मास के अंदर होना अनिवार्य होता है, नहीं तो वो घोषणा स्वयं ही समाप्त हो जाती है। संकटकालीन घोषणा के इस समय यदि लोकसभा भंग है अथवा उसका अधिवेशन नहीं चल रहा है तो इसकी पुष्टि राज्यसभा द्वारा 1 महीने के अंदर होना होता है तथा बाद में लोकसभा द्वारा जो अधिवेशन जो है एक होने के 1 मास बाद अंदर ही हो जाना चाहिए। यानी 1 मास के अंदर होना ये सुनिश्चित किया गया था। संसद द्वारा एक बार पुष्टि हो जाने पर आपातकाल का प्रभाव घोषणा की तिथि से 6 महीने तक रहता है। यदि इसके 6 महीने से आगे बढ़ाना है तो संसद द्वारा दूसरा प्रस्ताव पास किया जाना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इस प्रकार आपातकाल अनिश्चित काल तक जारी रहती है, परंतु स्थिति में सुधार होने पर राष्ट्रपति द्वारा घोषणा करने से जो है आपातकाल समाप्त भी हो सकता है। यानी यहाँ पर सारी शक्ति जो है राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। संविधान के 44वें संशोधन के अनुसार लोकसभा के 10% या अधिक सदस्य लोकसभा के अधिवेशन की मांग भी कर सकते हैं तथा उस अधिवेशन में साधारण बहुमत द्वारा आपातकाल को रद्द अथवा समाप्त भी किया जा सकता है। ये प्रावधान निश्चित किया गया था। कहते हैं हमारे देश में 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा की जा चुकी है। पहली बार जो है 26 अक्टूबर 1962 को आपातकालीन घोषणा की गई थी जब चीन ने हमारी उत्तर पूर्व की सीमाओं पर आक्रमण किया था। तो इस समय जो है पूरे भारत में आपातकालीन घोषणा किया गया था और यह राष्ट्रीय संकट जो था 10 जनवरी जो है 1968 तक जारी रहा। यानी काफ़ी समय तक देखा जाए तो ये जारी रहा, हालांकि तनाव बहुत पहले समाप्त हो गया था। उसके पश्चात दूसरी बार इसकी घोषणा जो है दूसरे जो है भारत पाक युद्ध के समय 3 दिसंबर 1971 को की गई तथा यह 21 मार्च 1977 को समाप्त हो गई। कहते हैं बाहरी आक्रमण के आधार पर यह आपातकाल चल ही रहा था, परंतु उसी समय 25 जून 1975 को तीसरी आपातकालीन घोषणा कर दी गई। यह घोषणा आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर की गई थी जिसके लागू करने का कोई औचित्य नहीं था। सरकार के पास 1971 के दूसरे राष्ट्रीय आपातकालीन शक्ति पहले से ही थी, इसलिए जो है आपातकालीन लगाना बहुत ही सरल हो गया था। कहते हैं भारत में सिर्फ 3 बार लगाई गई, लेकिन तीनों बार जो थी तो परिस्थिति खराब थी, जो कि बहुत काफ़ी कंट्रोल से बाहर थी, लेकिन फिर भी हमारे जो है सूझबूझ की वजह से जो है ये काफ़ी जो है कंट्रोल में आ गया था। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव देखिए, इसमें जो होता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाई जाती है उसका क्या प्रभाव होता है, आखिर इसके दौरान क्या चीज़ें जरूरी होती है राष्ट्रीय के लिए। कहते हैं राष्ट्रीय जो है संकट की घोषणा के व्यक्तियों के अधिकार व राज्य के जो है दूरगामी प्रभाव पड़ता है। आपने पढ़ा भी था कि जब ये आपातकालीन घोषणा की जाती है तो हमारा जो अधिकार होता है सारे के सारे जो होते हैं ऑटोमेटिक नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, कहते हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि संघीय संविधान का स्वरूप जो है एकात्मक में बदल जाता है और केंद्र की सत्ता में वृद्धि हो जाती है। यानी देखा जाए तो सारे के सारे जो होता है जो स्वरूप एकात्मक में बदल जाता है, कोई भी जो स्टेट नहीं रह जाता, संघीय जो है संविधान खत्म हो जाती है और केंद्र के पास सारी सत्ता जो है चली जाती है। संसद को राज्य सूची में वर्णित विषय पर भी संपूर्ण देश अथवा उसके किसी भी भाग के लिए कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त हो जाती है। भारत का राष्ट्रपति राज्यों को कार्यपालिका संबंधी शक्ति के प्रयोग के तरीके के बारे में निर्देश देने लग जाता है। तो ये काफ़ी जो है इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इस जो है आपातकाल के दौरान लोकसभा एक बार में अपने जो है कार्यालय में 1 वर्ष तक की वृद्धि कर भी सकता है, परंतु घोषणा का प्रभाव समाप्त होने पर 6 महीने से अधिक की वृद्धि नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार राज्य के विधानमंडलों का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को केंद्र तथा राज्य के बीच राष्ट्र के बंटवारे से संबंधी प्रावधानों भी
जो है फेरबदल करने की शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। तो ये सारे के सारी चीज़ होती है आपातकालीन के दौरान जो होती है। लेकिन कहते हैं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आने वाली मौलिक अधिकार जिनके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो, स्वतः ही स्थगित हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। यानी पहले जो जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए थे उस सारे के सारे मौलिक अधिकार जो होते हैं खत्म हो जाते हैं, सिर्फ जीने का अधिकार ही रह जाता है। यह स्थगित आपातकाल की समाप्ति तक जारी रहता है, परंतु 44वें संशोधन के अनुसार केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर ही इन स्वतंत्रताओं को स्थगित किया जा सकता है। कहते हैं अगर हमने ऊपर जो बातें किया है इससे ये बात साफ शब्दों में स्पष्ट हो रहा है कि संकट काल में केवल राज्य की स्वायत्तता ही स्थगित नहीं होती है, बल्कि भारतीय संघीय संरचना भी एकात्मक ढांचों में बदल जाती है। इससे आवश्यक माना जाता है जिससे केंद्र सरकार की असामान्य स्थिति का जो है सामना करने के लिए पर्याप्त शक्ति मिल सके। परंतु 25 जून 1975 घोषित जो है राष्ट्रीय संकट के समय क्या हुआ, कुछ आलोचकों का कहना है कि इस काल में सत्ता का दुरुपयोग हुआ। कहते हैं लोकतंत्री परंपराओं का अतिक्रमण हुआ और विरोधी दलों के नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया, चुनाव टाल दिए गए और लोकसभा की अवधि बढ़ा दी गई तथा प्रेस का जो है गला घोटा गया। सत्ता के इसी दुरुपयोग के परिणाम स्वरूप 1970 में जनता सरकार का गठन भी हुआ तथा उससे वह संविधान संशोधित विधेयक पास भी कराया गया, जिसमें संकटकालीन शक्तियों के मनमाने प्रयोग के विरुद्ध अनेकों प्रावधान जोड़े गए।